जो अष्टदेव है वो अभी भी नंबरवार डिटैच हैं, अपने लौकिक परिवार से डिटैच हैं, अपने नाम के धन से डिटैच हैं, संबंधियों से डिटैच हैं, संपर्कियों से डिटैच हैं, तन के पदार्थों से भी डिटैच हैं। नहीं, हमको खिचड़ी नहीं चाहिए, हमको तो लड्डू पेड़ा जलेबी ही चाहिए, तो डिटैच हुए ना। Baba is saying that the 8 deities, their stage is such that they are detached even now, whether it is through the Laukic family members of the Laukic world, whether it is through the relatives of the world, those who come in their contact and connection, whether it is being detached through the wealth which is in their name, they are detached even to that. Whether it is the worldly materials, they are also detached to that. They don't say we can't eat khichdi, we need rich food to eat. They won't say this. So it is complete no desire. माने इसका मतलब है कोई इच्छा मात्र में अविद्या। I have desire, Baba. No desire. Total no desire. नंबरवार है ना। Number wise, yes, we all go through number wise, but to practice it, practice Nashta Moha, it has to be, Nashta Moha means total detachment. Detachment means no desire, is that correct? No desire in anything. We are seeing in and voice, not seeing. We are hearing and not hearing. We are feeling and not feeling. in voice maybe detached, maybe detached or not maybe detached I know. in voice, but in practical Practical how? maybe zero। Practical is the hardest, Baba. फिर Yes, Baba. यही This तो is the बात, hardest. This is our exam that we are going through. प्रैक्टिकल का एग्जाम है, Practical exams. बोल बोल का एग्जाम नहीं। We can think we can think intellectually, practically. Desire. Baba is saying the exams will take place practically. You can't just say. If you just speak, you cannot pass. You have to practically do it. Only then you'll pass. It will come suddenly, correct? माना अचानक परीक्षा आएगी ना। Come suddenly, anytime. अचानक परीक्षा तो आएगी, वो कड़क परीक्षा होगी, जिस बात में हमारी कमजोरी होगी वही परीक्षा आएगी। Baba is saying the examination it will take place suddenly, it will come in front of us suddenly, and whatever is our weak point, the same kind of exam will come for us. Yeah, that's fantastic. Yeah, it is great. So how do we overcome it before the exam comes? Baba will answer that. We're going to How overcome it before the exam. वरना ये जो सारी कमियां हैं इनको हम परीक्षा होने से पहले ही कैसे पार कर ले, हम परीक्षा के लिए कैसे प्रिपेयर करें। मंथन करें। Baba is saying it is through churning. You should think and churn. This thinking and churning. Ask Baba to explain it again. This is very complex area for me to understand. बोल रहे ये जो मनन चिंतन की बात है उन्हें समझ में नहीं आती है, दोबारा समझाने के लिए कह रहे हैं। Everybody said ये जो मनन चिंतन वाली बात है ना कि मनन चिंतन झूठा भी होता है, सच्चा भी होता है, वो सच्चाई है, वो रियलाइजेशन की बात है। Baba is saying the churning can be true, it can also be false. So this is about realizing the अभी तो रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। When I read your knowledge, Baba, I take it as truth. But if I go deep into it, Baba, my worry is I might come up with my own manmat, my own understanding. है ना, ज्ञान उन्हें समझ में आता है, ज्ञान को वो मानते हैं, लेकिन उस ज्ञान की जब वो गहराई में जाते हैं तो उन्हें डर है कि कहीं मनमत ना मिक्स हो जाए। तो वेरीफाई करो। You should have it verified. कदम पदम पर श्रीमत लेना का मतलब क्या है? Baba is saying what is meant by following Srimad at every step. What do you mean by this? Baba is asking you, what do you mean by following Srimad at every step? Following Srimad means following Baba's direction, Baba's whatever Baba is saying, as per whatever you read, as the face truth of it. So whatever that you are reading and your understanding of what you have read is Baba's truth. That I understand. है ना, कदम And I कदम पर take it. श्रीमत पर चलना माना जो बाबा डायरेक्शन देते हैं, जो भी वो मुरलियों में पढ़ते हैं, जो सच्चाई है उसे फॉलो करना है, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, उसे फॉलो भी करना है। और मन के अंदर जो संकल्प आते हैं
और जो हम निर्णय निकालते हैं कि ये है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसे भी वेरीफाई करना है। Baba is saying you should follow it. हमने but जो संकल्प चलाया वो राइट यस है या रॉन्ग है? Baba is saying you should certainly follow it, but whatever thoughts come to your mind, you That should is have it why- verified, whether it is verified. correct or whether it is incorrect. Yeah, so that is why I have to ask you everything. For Baba, this is simple. For Baba, everybody is asking all kinds of questions. It's very simple. But for us, it's complex. For us, number-wise, it's complex. बोल रहे बाबा से हर तरह के बच्चे प्रश्न पूछते हैं, बाबा के लिए आसान है, लेकिन हम बच्चों के लिए कठिन है. नंबरवार कठिन है, नंबरवार आसान है. It is easy, number wise it is difficult, number wise. Number-wise, exactly. It's all very individual and unique. Yeah. Okay, Baba. But it is said that only one person will be completely disease-free or have a disease-free body during the 21 births. Is that a true statement? उनका कहना है कि बाबा ने कई ऐसे कहा है कि एक ही आत्मा की 21 जन्मों के लिए कंचन काया होती है. पूरी कंचन काया 21 जन्मों के लिए एक ही आत्मा को मिलती है. हाँ, तो ये सही है क्या? ज्यादा योग होगा तो ज्यादा जन्म जन्मांतर काया सुंदर रहेगी. योग कम होगा तो उतनी ही काया कमजोर बनेगी. Baba is saying, the more you stay in yoga, you will get a beautiful body to that extent. And if you don't stay in yoga that much, if you don't remember the Father so much, then you will get a weaker body. So for the 21 births, all are having beautiful body, sundar body. तो 21 जन्मों के लिए सबकी सुंदर काया होती है. So it's not just one, it's not only Shiv Baba is having. तो ऐसी बात तो नहीं है ना कि 21 जन्मों के लिए केवल एक शिव बाबा की ही कंचन काया होती है. 21 जन्मों क्यों, 84 जन्मों की बात करो. 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बनता है. Baba is saying, why are you speaking about only the 21 births? Speak about the 84 births, because based on the 21 births, there is the account of the 63 births. Okay, Baba. Okay, when you say accounts of the 63 births, so 21 births. So if you are born, say if you don't do Purusharth, enough Purusharth, and you're born, say the last birth of the Silver Age, what is the impact of that birth on 63 births? उनका कहना है कि ठीक है, Just an समझे example. किसी आत्मा ने पुरुषार्थ नहीं किया. वो एक उदाहरण दे रहे. अगर किसी आत्मा ने पुरुषार्थ नहीं किया और त्रेता के आखिरी जन्म में उनका जन्म हुआ, त्रेता के आखिरी जन्म में उनको कंचन काया मिली, तो उसका असर 63 जन्मों पे क्या होगा? लास्ट में जाकर के ठीक मिलेगा. They will receive a good body in the end. कलयुग के अंत में जाके अच्छा जन्म मिलेगा. They will get a good, like that person you gave the example, na? So that kind of a person will receive a good birth in the end of the Iron Age. And of the Iron Age, they will receive a very good birth. So for the 63 births, they will not receive. मतलब 63 जन्मों में फिर उनको नहीं मिलेगा अच्छा जन्म. कम मिलेगा. They won't receive a birth that is as good. That's good. Because they came at the end. So it is all according to the order they came in the 21 births. तो 21 जन्मों में जिस क्रम से वो आए उसी क्रम से हिसाब है. So, like say suppose in the conference golden age, you are given the position of a maid. So how will that be an impact for the 63 births? That means will that person remain maid for the 63 births? उनका कहना है कि जैसे जो स्वर्णिम संगम युग है ना, उसमें अगर किसी को दास दासी का पद दे दिया गया तो उसका असर 63 जन्मों पे क्या होगा कि वो 63 जन्म दास दासी ही बनता रहेगा. क्या है ना, जो संगम युगी स्वर्ग है ना, उसमें अगर किसी को दास दासी का पार्ट दे दिया गया, कई का पार्ट दे दिया गया? दास दासी, बैकवर्ड पार्ट मिला. हाँ, दास दासी का पार्ट मिल गया अगर संगम युग के अंत में, नहीं संगम युगी स्वर्ग में, संगम युग स्वर्ग में अगर किसी को दास दासी का पार्ट मिला, दास दासी होते हैं, हाँ, तो फिर 63 जन्मों में उसका मना असर. एकदम सतयुग के आदि में राधा कृष्ण के बाद ऊंचा पार्ट किसका होगा? In the golden age, who will have a high part after Radha and Krishna? Sangam Yugam, In the golden age, the Baba actual said. golden age. After Radha Krishna, who will be having a high position after them? After that, After Radha and Krishna, who will be having? I was asking question to me. Good.
Ram Sita. After Radha Krishna, who will be having a high position in the golden age? I'm not very clear on that. नहीं, उनको नहीं पता, नहीं क्लियर नहीं है उनको जब So the positions, as I understand, Baba, the positions is like, okay, the highest would be Confluence Age Lakshmi Narayan, followed by the first prince and princess, which would be the Golden Age Lakshmi Narayan, then followed by, in order, the positions of मतलब उनका कहना है कि पद ऐसे ही डिक्लेयर होंगे ना कि सबसे ऊंचा पद जो है वो संगम युगी लक्ष्मी नारायण का, उसके बाद फिर जो सतयुग में राधा कृष्ण होंगे उनका पद उनके बाद है। तो संगम युग में है ऊंचे स्टेज में, ऊंची पद में, चाहे वो दास दासी भी हैं तो भी सतयुग वालों से भी ऊंचे हैं। If they are in the golden age, in the confluence age, if they are in the confluence age, then even if they are the maids and servants, they are higher than those who come in the golden age. higher than those who come. Even if they are maids and servants in the confluence age, they are higher than those in the golden age. I know, in the golden age, nobody realizes their position. They are all soul conscious. But okay, so now at confluence age, or confluence golden age, when they are maid and servant, will they take on that maid and servant position from 63 in 63 births onwards? उनका They कहना है remain a maid and servant from 63 births. सतयुग में ऊंच नीच पद की कोई माना भासना नहीं होती है, कोई ऊंच है कोई नीच है, इसका भाषण नहीं, जैसे परिवार है, परिवार में सबसे छोटा बच्चा है और परिवार का मुखिया है, ऊंच नीच की भाषणा नहीं है, लेकिन जो छोटा बच्चा है उसको सब बड़ों की बात माननी पड़ती है कि नहीं? Baba is giving an example. You said in the golden age there won't be the feeling of high and low position. Baba is giving an example. Like now, if there is a family, in a family there is the youngest member in a family. He is younger to the eldest member in the family, but he doesn't have that feeling. Still, he has to obey all the elders in the family. So there will be the same kind of feeling in the golden age. इनका प्रश्न है कि मैंने संगम युग में तो जिनको दास दासी का पद मिला, सतयुग त्रेता में उनको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब 63 जन्म शुरू, मेंटेलिटी यहाँ ऐसी बन जाएगी कि जो छोटा है, छोटी स्टेज वाला है, वो यहाँ से मेंटेलिटी उसकी छोटी जैसी बन गई। जो ऊंची स्टेज वाला है वो मेंटेलिटी वहीं से संगम युग से ही ऊंची स्टेज बन गई। Baba is saying it is about the mentality. If someone receives a low position, then from the confluence age itself, he will have this inferior feeling in him. From the Confluence age itself, he'll have this inferior mentality in himself. Okay, so And the one who is superior will have a superior mentality. Okay, so this inferior mentality carries on from 63. Say from the copper age, the first birth that they take in the copper age, the 63 births, will they actually physically take the positions of maid and servant? तो जिन्हें संगम युग में दास दासी का पद मिला, वो 63 जन्मों से मनस जो द्वापर का पहला जन्म है तब से लेकर के उनको मनस स्थूल में दास दासी बनना पड़ेगा। हाँ, तो नीचे स्टेज में होंगे They will be in a low stage. उनके मुकाबले, जो फर्स्ट स्टेज वाले हैं उनके मुकाबले नीचे स्टेज में होंगे। They will be in a low stage when compared to those who are in the high stage. प्रजा वर्ग वालों की कंपैरिजन प्रजा वर्ग वालों से होगा, जो राज परिवार के हैं उनका कंपैरिजन राज परिवार वालों से होगा। Baba is saying that those who belong to the subjects category will be compared with the subjects category, and those who belong to the royal family will be compared with the members So of the from royal 63 family. births will be a subject category in Sangam Yuga, golden age. That means there will be subject category in from 63 births in Sangam. They अगर- can't become king. और अगर संगम युग में दास दासी है तो 63 जन्मों में भी दास दासी ही रहेंगे, राजा रानी का पद नहीं मिल सकता उन्हें। संगम युग में दास दासी हैं तो वो सतयुग के जो दास दासी वाले, दास दासी वर्ग के जो लोग हैं उनसे सबसे ऊंचे हैं। Baba is saying even if they are maids and servants in the confluence age, they are higher than the maids and servants in the golden age. Correct. फर्स्ट एज, Correct. Because this is the first age. It's the first age. Then when it comes to copper age, what happens? तो वो जब द्वापर में जाएंगे तब क्या होगा? वो वहाँ भी दास दासियों में सबसे ऊंचे रहेंगे। There also in the category of maids and servants, they will be the highest. So it goes, they can't move their positions. मतलब उससे आगे वो लोग नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ, हाँ। आगे वाले कैसे पीछे वालों से आगे बढ़ जाएंगे?
Baba is saying that how will those who come in the beginning go ahead than those who come in the end? How can those who come in the beginning go Ahead than those who come in the end. Okay. For us, सत्युग actually, there सत्युग is- के दूसरे जन्म में दूसरे धर्म की आत्माएं ऊंची स्टेज में आ जाएंगी ना. Baba is saying in the second birth of the golden age, the souls of the other religions will go in a high stage. So we will start falling even further, correct? तो हम मना गिरते जाएंगे. ऊपर वाले फिर नीचे गिरते चले जाएंगे. हमेशा ऊंचे कैसे रहेंगे? Those who are high, they will start degrading. How can they stay superior all the time? All the time. So now I have to think of what I am now and what I was before. Okay. Okay. Never mind. That one is personal question. Okay. Never mind. Okay. Baba, later. हाँ? That's right. Businesses. When Baba says businesses and all will fall and only Baba's shop remains at the end. When and question of destruction of religions, irreligiousness in the world. When does this start to occur? Is Are it you asking about the destruction of the religions, the religions where irreligiousness occurs, and also when businesses, economic, political, organizations start to fail? When will that start occurring, Baba? From the period of Mahashivratri onwards, after 2000? बाबा ने कहा है ना कि सब धंधे फेल हो जाएंगे. हैं? सब धंधे फेल हो जाएंगे. सब धंधे नुकसान हो जाएंगे. तो ये कब की बात है? कब से होगा? महाशिवरात्रि के साथ. अभी भी हो रहा है. It is happening even now. Even now it is happening, correct. So it will carry on happening in अब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. It will go on more increasing. intensity. So that's when the outside world also will start to search for God. तभी दुनिया वाले भी भगवान को ढूंढेंगे. हाँ. And now when we tell God has come, Baba has come, I'm trying to tell people, there is God here, come. Nobody wants to listen. बोल रहे और अभी ये हाल है कि वो दुनिया वालों को कहना All are happy. Malaysia, all are happy. बोल रहे कि अभी ये हाल है कि वो दुनिया को कहना चाहते हैं भगवान आया है, लेकिन वो मानते नहीं है. क्योंकि मलेशियंस जो है वो लोग खुश है, हैप्पी है. वो लोग भगवान को ढूंढ नहीं रहे हैं. वो क्या नहीं कर रहे? भगवान को नहीं ढूंढ रहे. वो लोग खुश है अपनी दुनिया में. उनके लिए अभी स्वर्ग है. इट इज हेवन फॉर देम नाउ. I know it's heaven. They won't believe. Baba, everybody won't believe because it's still a good, happy country. Well, sort of. Okay. Okay. I think that's the kind of all these questions I have. Almost I have. Okay. If we don't know Hindi, Baba, we can't go into Satyug. अगर हमें हिंदी नहीं आती तो क्या हम सतयुग नहीं जाएंगे? आ जाएगी. You will learn it. You will learn it. I will learn it. Baba, teach me, okay? बाबा I think सिखाएंगे of you मुझे. and you teach me Hindi. बूढ़ी बूढ़ी माताएं I'm हिंदी very सीख रही हैं. glad. But teach me knowledge also. Baba is saying even the old mothers are learning Hindi. Okay. So Baba, we just think of Baba and Baba will teach Hindi. वरना हम बाबा के बारे में ही सोचते रहे, बाबा हमें हिंदी सिखा देंगे. But how much Hindi, the level Baba speak and the level we are going to learn is going to be very different. बोल रहे लेकिन बाबा की हिंदी जिस लेवल की है और हम जिस लेवल की हिंदी सीखेंगे उसमें तो बहुत अंतर होगा. क्यों अंतर होगा? बाबा is saying why will there be a difference? But Baba is Baba. बाबा इस बाबा. Baba's mother. बाबा तो बाबा है ना. बाबा की मातृभाषा हिंदी है. Mother's tongue is Hindi. Their mother tongue is not Hindi. हमारी मातृभाषा हिंदी. बाबा का हर जन्म में थोड़ी मदर टंग हिंदी रही. Baba is saying Baba's mother tongue was not Hindi in all the births. On the bus now. So Baba, we took birth in foreign lands. Why, Baba? हमने विदेशों में जन्म क्यों लिया? अंत में सेवा करने के लिए. बाबा जब जन्म लेता है विदेशों में तो आपको लेना क्या बड़ी बात? Baba is saying when even Baba is born in the foreign countries, what is a great deal if you are born in the foreign countries? So now this birth, our role now in foreign countries, we are born, Baba, and we are coming all the way to India too. So we are Bharatvasi souls, but we are coming now. We are born in a body that is in foreign lands. Why? What is the purpose of this body in this foreign land now? What are we supposed to do?
उनका कहना है हमारी आत्मा भारतीय है, लेकिन हमारा शरीर जो है वो विदेशों में जन्म हुआ है शरीर का, तो इसका कारण क्या है, हमें क्या करना है? आपने कुछ गड़बड़ किया होगा बाबा के साथ। Must have done something wrong with Baba. You must have done something wrong with Baba. I think so too, Baba. I am sinful. I never said I was pure. मैं पतित हूँ, मैंने नहीं कहा Why, कि मैं Baba, पवित्र हूँ। we offended you in the last birth. That's why we are now in Malaysia, far away from you. And we have to take a long trip to come and see you. इसलिए हम दूर हैं, मलेशिया में हैं, हमें दूर से आना पड़ता है बाबा से मिलने के लिए। अभी नजदीक आ जाइए, कोशिश करिए। बाबा is saying try and come close to him now. Intellectually, Baba. मन बुद्धि से। प्रैक्टिकल अलग होता है, मन बुद्धि से अलग होता है। Practically, we fly and come. Practically it is different, and through the mind and intellect it is a different case. So close now, Baba. Close Practical now. is done by physically. Practical is done physically. Physically. So now must have the government of India to give us full visa, no restriction, then we can come. वो बोल रहे ये कुछ नहीं। Government of India is only giving us 1 month, Baba. 1 month, even 6 months visa, 1 month only we can be here. After we have to go back and then come back to India. पूरे इंडिया की गवर्नमेंट अभी एक ही महीना रहने की है एक ही महीने ही रहने की परमिशन दे सकती है इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हम मानते ही नहीं, हम नेशनलिटी हम नेशनलिटी इंडिया की ले लेते हैं। Baba is saying we take the nationality of India. We don't accept what the government says. But the government is not going to put me behind bars क्या? if I stay over there. गवर्नमेंट मुझे जेल में डाल देगी अगर मैं यही रही तो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी किसी भी देश की नेशनलिटी को त्याग पत्र दे सकता है। Baba is saying it is not like this. You can renounce any nationality you want, and you can accept any other nationality. You can come here and be an Indian PR, Indian citizen. And I stay with Baba, right? तो इस तरह मैं बाबा के साथ रहूंगी। I got no other home. Baba so many. I have to come to my father so many. मगर मेरा और कोई घर तो नहीं है ना, मुझे बाबा के घर में ही आना है। हो गया। लो, जब सबको बुला लिया तो हैं? हाँ चलो टाइम दो। No, but everybody wants to ask questions. Everybody is so knowledgeable. बाबा तो राजाई देने के लिए आते हैं ना, राजयोग सिखाकर राजा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु राजा बनकर जन जन्मांतर मारकाट मचाना, दूसरों को दुख देना, इम्प्योरिटी धारण करना, तो राजा बनकर क्या फायदा? ऐसी राजाई किस काम की? इससे अच्छा विजय माला है ना, जो जन जन्मांतर प्योरिटी को धारण करते हैं। बस रुद्र माला बाप को पहचानते हैं, फिर भी प्योरिटी न होने के कारण तो दुखी ही है ना। जो विजय माला वाले हैं उनमें ज्ञान है? ज्ञान न होने के कारण 63 जन्मों में जब पुरुष बनते हैं तो झूठा वैराग करते हैं या सच्चा वैराग करते हैं? राजा ही तो नहीं करते, लेकिन वैराग करते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। तो सन्यासी झूठे हैं या सच्चे हैं? झूठे हैं, शिवो अहम कह के बैठ जाते, हम ही भगवान हैं। ब्रह्मा बाबा तो चला गया जिसके तन में शिव बाबा आता था, अब शिव बाबा किसके द्वारा कार्य करा रहा है? हम बच्चे ही ब्रह्मा, हम बच्चे ही विष्णु, हम बच्चे ही शंकर। जो कुछ करना है वो हमारे प्रति करो,
हम संदली पे बैठे हैं, हमसे दृष्टि लो। हमारी दृष्टि से तुम्हारी सृष्टि 84 जन्मों की सुधर जाएगी। तो कल्याण हुआ या अकल्याण हुआ है? अकल्याणकारी हुए। दूसरी बात क्या सभी राजाएं ऐसे होते हैं जो तपस्या करें और नरकगामी बने? नहीं, राजा बने और राजा बन करके पाप ही पाप करें। सभी राजाएं ऐसे होते हैं या नंबरवार होते हैं? तो नंबरवार में कोई अव्वल नंबर भी होंगे। कैसे? बुद्धि में 100% ज्ञान भरने वाले भी कोई राजा होंगे या नहीं होंगे? जब ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, श्रीमत बुद्धि में भरी हुई है, तो श्रीमत के आधार पर चलने के कारण उनसे पाप कर्म कम होंगे या ज्यादा होंगे? है? कम होंगे। या नहीं भी हो, सबको सुख देने वाले हो। जैसे पुरुषार्थी जीवन में नारायण का जो पार्ट है वो सबको अंदर से प्यारा लगता है कि कोई कोई को बहुत घृणा आती है? नारायण का जो पार्ट है वो सबको प्रिय है। सबसे नीचे से नीचे जो है उनसे भी उनका प्यार, और जो ऊंचे ऊंचे पार्टधारी हैं उनको भी नारायण से प्यार आता है। नारायण से किसी को द्वेष होता है? नहीं होता है। तो नारायण वाली आत्मा 63 जन्म में होगी या नहीं होगी? तो ये कैसे कह दिया कि तप कर राज कर नरका? वो अव्वल नंबर के लिए भी लागू होता है। और उसके बाद भी तो और 8 नंबर हैं जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते। तो जो 8 और भी उसके साथी हैं वो भी उसी स्टेज में होंगे या नरक में जाने नरकगामी होंगे? है? होंगे। अगर होंगे भी तो लास्ट जन्म में जाकर के होंगे, इसलिए कि नीचे गिरेंगे तो ऊंचे भी उठेंगे, और नीचे गिरेंगे भी नहीं कभी भी तो ऊंचे उठने का आनंद आएगा। सबसे ज्यादा साहूकारी का आनंद उसको आएगा जो अपने पूर्व के जीवन में बहुत गरीब रहा हो। उसको साहूकारी जीवन का आनंद आएगा, या जो अपने बचपन के जीवन में गरीब रहा ही नहीं है, साहूकारी में ही पला है और बड़े होकर के भी साहूकारी ही रहा। किसको ज्यादा आनंद आएगा साहूकारी का? जो पहले गरीब था। ऐसे ही जो पहले गरीब बैगर था और बाद में बैगर से प्रिंस बन जाता है, विश्व का मालिक बन जाता है, तो उसकी खुशी का पारावार रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसे ही है। कोई है जो कलयुग के अंत में भी आकर के सूर्यवंशी हैं, ऐसे जो खुद भी बहुत सुखी रहते हैं और पूरा परिवार भी बहुत सुखी रहता है अंतिम जन्मों में भी। संगम युग के अंतिम जन्म की बात नहीं कर रहे। कौन से जन्म की बात कर रहे? कलयुग के अंत तक के 84 जन्मों की बात कर रहे।
उन जन्मों में भी बहुत सुखी रहते हैं, शांत और सुखी। ऐसे भी कोई पुरुषार्थी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, जिनके ज्ञान और योग बल और याद की ताकत अंतिम जन्म तक भी काम आती रहे। क्योंकि याद से हेल्थ मिलती है, हेल्थ होगी तो इंद्रियों का सुख भोग सकेंगे, या हेल्थ ही नहीं होगी तो इंद्रियों का सुख भोग सकेंगे। है हेल्दी जितने होंगे उतना ही इंद्रियों का सुख भोग सकेंगे। हेल्दी नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, सिनेमा और टीवी कैसे देखेंगे। नाक में साइनस ही बना रहता है जिंदगी भर, जुकाम ही बना रहता है। उनको खुशबुएं आएंगी? नहीं आएंगी। कान से बहरे हैं, जिंदगी से पैदा हुए, तो भगवान की वाणी भी उनको सुनाई पड़ेगी? है नहीं सुनाई पड़ेगी। भगवान की वाणी का भी सुख नहीं ले सकेंगे। अच्छे अच्छे वाद्य यंत्रों का सुख लेना वो तो दूर की बात रहेगी। ऐसे ही और इंद्रियों में ताकत है, हेल्दी है तो सुख ले सकेंगे। हेल्दी नहीं है तो सुख नहीं ले सकते। तो हेल्थ कैसे आती है? जितनी गहरी याद में रहते हैं उतने जास्ती हेल्दी बनते हैं। जितने जास्ती याद में रहते हैं उतने ज्यादा लंबे समय तक हेल्दी बनते हैं। तो याद में रहने वाली आत्माएं नंबरवार होंगी या सब एक जैसी होंगी? नंबरवार होंगी। जो 8 हैं जरूर बहुत हेल्दी रहेंगे जन्म जन्मांतर, जिनको धर्मराज की सजाएं भी नहीं मिलती। क्या प्रश्न था? है मैंने ये प्रश्न था कि रुद्रमाला में आने से तो विजयमाला अच्छी है ना, विजयमाला जन्म जन्मांतर की प्योरिटी धारण करती है और रुद्रमाला तो इम्प्योर रहती है तो इसलिए दुखी रहती है ना। रुद्रमाला इम्प्योर अंत तक रहती है कि अंतिम स्टेज में जाकर के नंबरवार विजय प्राप्त होती है। वो तो संगम में ना। संगम युग में? संगम युग में कोई ऐसे पुरुषार्थी नहीं होते हैं जो 1 सेकंड में बीज रूप स्टेज में समा जाएं। नहीं होते हैं। तो फिर वो विजय माला के मुकाबले ऊंची स्टेज में रहेंगे या नीची स्टेज में रहेंगे? नीची स्टेज। जिनके लिए बाबा ने बोल दिया ये स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है नरक की दुनिया में रह करके भी जो नरक के जितने भी जीवड़े हैं, आत्माएं हैं, प्राणी हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करके रहेंगे या उनसे हार खाएंगे? विजय प्राप्त करके रहेंगे। तो विजय से खुशी होगी या दुख पैदा होगा? है सुखी होगी। नंबरवार है या सब एक जैसे हैं? हाँ, ऐसों की संख्या ज्यादा है और विजय माला में ऐसों की संख्या ज्यादा है। जैसे बोला, क्या बोला? वही विजय माला जो है वो प्योरिटी को धारण करती है, लेकिन रुद्रमाला प्योरिटी न होने के कारण दुखी है। हाँ, तो ज्यादा सुखी कौन रहते हैं? विजय माला जो विजय माला के मन के ज्यादा से ज्यादा हैं जो सुखी रहते हैं
और रुद्रमाला के मणके ज्यादा से ज्यादा हैं जो दुखी रहते हैं। बाकी सब एक जैसे हैं होते हैं क्या? है? सब तो नहीं होते। और बाबा राजचंद्र में बाबा ने बताया, मैंने किसी ने पूछा गणेश की दो पत्नी है ना, गणेश की दो पत्नी है ना, बुद्धि और सिद्धि। बाबा ने कहा बुद्धि जो है वो अमृतम्बा है और सिद्धि जो है वो जगदम्बा है। लेकिन जगदम्बा तो मतलब गणेश तो ब्रह्मा हुआ है ना, और जगदम्बा तो माँ है ना, तो वो कैसे होगा? ब्रह्मा की माँ है और ब्रह्मा से पैदा होने वाली बेटी है जगदम्बा। जगदम्बा सरस्वती जो है, जगदम्बा जो जगदम्बा है वो बेटी है या माँ है? सरस्वती बेटी है। सरस्वती ही तो, सरस्वती माने ज्ञान में तीखी, सरस्वती माने ज्ञान में तीखी। तो ज्ञान में जो तीखी है वो जब तामसी बनती है तो वही क्या बन जाती है? नहीं, महाकाली बनती है। और महाकाली की जीभ लंबी है या छोटी है? ज्ञान में सबसे सुनाने में, सुनने में ज्यादा तीखी है या कमजोर है? पंजाबियों को गुरुद्वारे में जाओ तो 24 घंटे वहां क्या चलता रहता है? गुरुवाणी चलती रहती। और जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं उनमें लगातार गुरुवाणी नहीं चलेगी। तो इसका फाउंडेशन कौन डालता है? जगदम्बा। बाबा आत्मा एक ही है, जो बुद्धि का ही पार्ट हो जाते, सिद्धि का ही पार्ट हो जाते, या अलग अलग आत्मा है? एक ही देवी है जो 9 देवियों में पार्ट बजाती है, भूल गए? हाँ। और भगवान का पार्ट गुप्त है ना, तो गुप्त उनका भगवान का पार्ट गुप्त क्यों है, जिसको कोई सुनता भी नहीं, समझता ही नहीं, लेकिन ज्ञानी सभी लोग करते हैं, और भगवान को ज्ञानी सुनने की क्या आवश्यकता है? भगवान है तो सबसे ऊंची मेंटेलिटी वाला होगा, मध्यम या नीची मेंटेलिटी वाला होगा? है जिसकी बहुत ऊंची मेंटेलिटी होगी, कोई ग्लानि करे चाहे महिमा करे, प्रभावित होना चाहिए। वो तो प्रभावित ही नहीं होगा, वो तो मस्त कलंदर, बेगमपुर का बादशाह। उसके किसी या ग्लानि करने से क्या लेना देना? वो तो जानता है जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। भगवान की महिमा करेगा तो महिमावान बनेगा, भगवान की ग्लानि करेगा तो संसार में ग्लानि पाने वाला बनेगा। तो उसको चिंता है? नहीं। गीता में क्या बोला? संपन्न आत्मा के लिए क्या बोला? मान और अपमान दोनों से परे। हाँ। निंदा स्तुति में तुल्य बराबर रहने वाला। कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, तभी तो वो ऊंचे से ऊंचे है। कोई निंदा करे, मोड़ा लटक गया, और कोई महिमा कर दे, ओहो, बहुत ऊंचा अनुभव करने लगे, बहुत खुशी आ गई। तो वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं कहे जाएंगे। देवताएं जो होते हैं वो महिमा प्रिय होते हैं,
उन्हें क्या प्यारा लगता है? कोई महिमा करे तो खुश हो जाएंगे, देव आत्माओं की कोई ग्लानि करे तो मोड़ा लटक जाता है, अवस्था ही खराब हो जाती है। तो देवताओं से भी ऊंच कौन है? देवताओं से ऊंच भगवान है। भगवान कहा ही इसलिए जाता है कि वो ऊंच से ऊंच पार्ट बजाता है। और बाबा कोई आगे बढ़ते हैं पुरुषार्थ में, ज्ञान में, कोर्स कराने में, और कोई उनका ईर्ष्या करते हैं, तो उनका क्या सोचेंगे? जो जैसा करते हैं उनको वैसा ही मिलेगा जन्म जन्मांतर। जो ज्ञान सुनाने में तीखे जा रहे हैं, जन्म जन्मांतर साहूकार बनेंगे। उनसे ईर्ष्या करने वाले ज्ञान सुनेंगे सुनाएंगे नहीं, गरीब बनेंगे लेकिन उनसे ईर्ष्या करेंगे। तो फायदा होगा या नुकसान होगा? ये तो नुकसान का सौदा हो गया। जो याद करेंगे वो हेल्दी बनेंगे जन्म जन्मांतर। याद नहीं करते हैं लेकिन ईर्ष्या करते हैं, याद वालों से बड़े जोगी बने फिरते हैं, तो वहां भी क्या होगा? है लुंजुम पुंजुम भज गोविंदम, लूले लंगड़े काने कुब्जे। और जो हेल्दी है उनको गालियां देंगे। तो प्राप्ति हुई या प्राप्ति हुई? ये तो बढ़िया प्राप्ति होगी। कोई बहुत सेवा करते हैं, सेवा का मेवा मिलता है उनको खुशी का, क्योंकि शिव बाबा उन बच्चों को याद करते हैं। जिनके ऊपर शिव बाबा की याद के वाइब्रेशन पड़ेंगे वो तो खुशी ही रहेंगे या दुखी होंगे? खुश रहते हैं। उनसे ईर्ष्या करने वाले है, ईर्ष्या करने वालों का क्या हाल होगा? ईर्ष्या कर करके दुखी होंगे या सुखी होंगे? दुखी होते रहते। यहाँ भी दुखी होते हैं और शूटिंग पीरियड में दुखी होते हैं, तो वहां भी दुखी। परचिंतन में आए या स्वचिंतन में आए, ये तो परचिंतन हो गया। कोई क्या करता है, जो करता है अपने लिए करता है, अच्छा करता है अपने लिए, बुरा करता है अपने लिए। हमें उसका चिंतन करने से क्या लेना देना? परचिंतन पतन की जड़। और बाबा राजा हरिश्चंद्र अच्छे कर्म किया या राजा उदय सिंह अच्छे कर्म किया? राजा हरिश्चंद्र अच्छे कर्म किए या राणा उदय सिंह ने अच्छे राणा उदय सिंह अच्छे कर्म? हो। राणा उदय सिंह पिटाई करता है कि नहीं बच्चे की? है? पिटाई करता है। बाहुबल चलाता है या नहीं? है? चलाता है। खून की नदी बहाता है कि नहीं? है? वो अच्छा लगता है आपको? तो प्रश्न आता है, नारायण तो बाहुबल नहीं चलाता। नारायण तो योग बल के आधार पर सारा संसार चलाता है। तो कहाँ योगी, जिसे हरिश्चंद्र कहा गया है, सतयुग का राजा? हरिश्चंद्र कहाँ का राजा है? सतयुग का राजा है। सत्य युग में जिसने राज्य किया वो है दानी हरिश्चंद्र, जिसने अपना तन मन धन समय संपर्कियों को संबंधियों को सबका त्याग किया, सबका दान किया, पूरी ताकत ईश्वरीय सेवा में लगाई। तो कहाँ हरिश्चंद्र और कहाँ कलयुगी राजा? कौन? उदय सिंह। कहाँ 16 कला संपूर्ण
और कहा कलयुग के अंत में आकर के विदेशियों के संग के रंग से कलाहीन बन गए। लेकिन फिर भी जो कलाहीन है कलयुग के और धर्म वाले, उनके मुकाबले तो उदय सिंह का पार्ट ऊंचे है या नीचे है? उनके मुकाबले तो ऊंचे है। बाकी नारायण से तुलना नहीं कर सकते, हरिश्चंद्र से तुलना नहीं कर सकते। और बाबा एनएस में जो लोग जाते हैं ना, वो लोग मतलब क्या पुरुषार्थ करने से एनएस में जाएंगे और उसके पीछे क्या राज है? जो बाप के बच्चे बन करके रहते हैं जन्म जन्मांतर, बाप है भोलानाथ, तो भोलेनाथ के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? भोले भाले, सीधे साधे। भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, तिकड़मबाज नहीं है। क्या 400 BC वाली बुद्धि नहीं है। तो ऐसे बच्चे बाप को प्रिय हैं। वो सहज सहज कहाँ जाते हैं? भले बुद्धि के बहुत तीखे भी नहीं है। क्या? लेकिन साधारण बुद्धि है। सच्चे हैं या बात बात में झूठे हैं? सच्चे, दिल के सच्चे और साफ हैं, इसलिए एनएस में आ जाते हैं। सच्चे दिल पर साहबराजी, इसलिए उठा लेते हैं। 400 BC बुद्धि, 400 BC में हर काम में, हर बात में तिकड़म मिलाते, सीधे साधे होके नहीं चलते। जैसे किसी के 2 भाई हैं, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, बड़े भाई ने 400 BC करके झूठे उठे साइंस कर आके सारी प्रॉपर्टी हड़प ली छोटे भाई की, तो उसे क्या कहेंगे? 400 BC कहेंगे। बाबा भक्ति मार्ग में शिवलिंग पर नैवेद्य चढ़ाते हैं और ऐसे कहा जाता है कि वो नैवेद्य जो है वो जो योगी लोग होते हैं वही खा सकते हैं, तो क्या अर्थ है? भगवान पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है शिव के ऊपर, खास शिवलिंग के ऊपर, प्रसाद माने क्या? प्रसन्नता। भगवान के ऊपर भाई भी अर्पण होते हैं। कुमार भी अर्पण होते हैं, अदर कुमारियां भी अर्पण होती हैं, कुमारियां भी अर्पण होती हैं। सबसे जास्ती संसार को खुशी इनमें कौन देते हैं? हैं? जोर से बोलो। कुमारियां सबसे जास्ती खुशी देती है। तो प्रसाद माने प्रसन्नता। तो सबसे ज्यादा जो प्रसाद देती है संसार को, प्रसन्नता पैदा कर देती है, ज्ञान सुना करके, अपनी ज्ञान में धारणा करके, धारणा के आधार पर प्रसन्न कर देती है, भगवान के साथ निश्चल प्यार करती है, अब बेचारी याद में रहती है। ऐसा प्रसाद जो भगवान के ऊपर अर्पण होता है, कुमारों को तो अर्पण किया जाता है, नहीं किया जाता। अदर कुमारियां तो बांधेली होती हैं। अर्पण भी हो जाए तो धतूरे का फूल, क्या शादी हो गई ना,
तो अधर हो गई, संपूर्ण कुमारी नहीं, पवित्रता की बहुत सुगंध नहीं रहती, फिर भी अर्पण हुई। इसलिए बाबा क्या करता है, उन अर्पण होने वालों को क्या करता है, क्या करता है, कुमारियों को क्या बना देता है, माता बनाता है, और अदर कुमारियों को कन्या बना देता है। बनाता तब है कि अदर कुमारी बनने के बाद अर्पण हो जाएं, तो अर्पण होने के बाद फिर कभी भी किसी के साथ लगाव झुकाव पैदा न करें, ये शर्त है। तो वो कुमारी हो गई कि नहीं है, कुमारी हो गई। कुमारियों को पुरुषार्थ के आधार पर जरूर कुमारियों का ही फल मिलेगा। तो क्या प्रश्न था? जो योगी होते हैं वो खा सकते हैं? जो योगी होते हैं वो उस नैवेद्य को खाते हैं। योगी माने जिनकी बुद्धि मन कहाँ लगा हुआ है? शिव बाबा में। और संपन्न योगी कितने हुए हैं? मुकर्रर योगी कौन हुआ? एक। तो एक जो है उसके लिए तो जो भी प्रसाद, जो भी अर्पण हुआ शिव के ऊपर, उनको स्वीकार करते हैं। लेकिन एक के समान और भी है राजधानी में, नहीं लगातार हैं या अंत में है? धीरे क्यों बोल रहे, जोर से बोलो ना। जो और 8 हैं वो लगातार योगी हैं या अंत में योगी है? अंत में योगी बन जाते हैं। वो भी धर्म पिताओं के भी पूर्वज बन जाते हैं। तो धर्म पिताओं को तो इतना हुजूम का हुजूम फॉलो करता है, अपनी मन बुद्धि अर्पण कर देता है। वो तो उनसे भी श्रेष्ठ हैं। शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं। क्या है? तो शिव के 12 ज्योतिर्लिंगम में, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगमों में से 3 कैसे हैं? नष्ट देव, उनको छोड़ दो। उन पर जो अनपढ़ होते हैं वो तो बेधर्मी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? शर्तिया बेधर्मी बन जाएंगे, संग का रंग लग जाएगा। बाकी जो 8 बचे वो 8 है पक्के सूर्यवंशी हैं। वो मन बुद्धि से जब संपन्न बनेंगे तो संपन्न होने के बाद मन बुद्धि से देह का सुख लेंगे या नहीं लेंगे? है? नहीं लेंगे। इसलिए उनके ऊपर कोई पाप भी नहीं लगेगा। ओम शांति।